شریف مرد پر عورت سوار ہو جاتی ہے، عورت شریف پر مرد سوار ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کی روٹین ہے۔ پھر جب دیکھتی ہیں شریف عورت بھی تو دوسروں کو دیکھ کر جو نیچے لگا ہوتا ہے خاوند، تو وہ عورت بھی کوشش کرتی ہے کہ میں بھی اس خاوند کو دبانے کی کوشش کروں۔ پھر گھر توڑنے کی بجائے، جڑنے کی بجائے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حالانکہ شریعت کے بھی اصول ہے کہ قصاص ہے، قتل کا بدلہ قتل، تو اسی طرح جو شریف مرد ہے عورت کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور نظر دہرائے کہ ایسے مرد بھی ہیں جو تیز ترار ہیں، عورت کو جو ہے کک بھی نہیں مارتے، تو میرا خاوند تو بہت اچھا ہے، اس کی رسپیکٹ کرے۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ عورت شریف ہے، کوئی مطالبہ نہیں کرتی، کوئی زیادہ زبان نہیں چلاتی، اتنی چست چلاک نہیں، تو اس کو برداشت کرے۔ تو اسی لیے مرد کو بھی چاہیے عورت کی قدر کرے جو شریف ہے، اور عورت کو بھی چاہیے جو مرد شریف ہے اس کی قدر کرے، کیونکہ اصول ہے کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، کیونکہ ہم بھی ہیں آپ کی طرح انسان۔ تو وفا کی وفا ہونی چاہیے، وفا کی جفا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سب نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور سب کے گھروں کو آباد فرمائے، مردوں کو بھی عقل عطا فرمائے کہ نظر دہرائیں کہ میری عورت شریف ہے، میں اس کو دبائے رکھا ہوں، تو نظر دہرائیں کہ فلاں عورتیں بھی پھر رہی ہیں، ان مردوں کی کیا حالت ہے، تو انسان دیکھ لیتا ہے۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ مرد فلاں جو ہے ایسے ہیں۔ جیسے ایک صحابیہ تھی، نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس مرد کے ساتھ، خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں، یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے۔ مرد یہ نہ سمجھے یہ تو عورت کا واقعہ ہے، عورت کے لیے نہیں، دونوں کے لیے ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیری دل نہیں ہے اس کے ساتھ تو خلا لے لے۔ تو پھر ایسا بھی فرمایا کہ اگر تو اس سے خلا نہ لے تو بہتر ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ حکم ہے یا مشورہ؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ مشورہ ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار نہ کر۔ تو اس نے نہ مانا، خلا لے لیا۔ جب دوسری جگہ نکاح ہوا تو وہ خود عورت کہتی ہے کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ مان لیتی، مشورے کو ٹھکرانے کی وجہ سے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان سے، زبان اطہر مبارک سے جو مشورے والی بات بھی ہے وہ نکلی، وہ بھی قرآن اور حدیث ہے۔ جس زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو تو ہر وقت وحی آئے یا نہ آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جھوٹ کا احتمال بھی نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وحی کے بغیر یہ بات کی ہے، نہیں، آقا کی شولٹی جو ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ پاک نہ فرماتے میرے پیارے حبیب کی اطاعت در حقیقت میری ہی اطاعت ہے۔
जिसने मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की इताअत की, दर हकीकत गोया कि उसने मेरी इताअत की। तो वो औरत कहती है कि मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशवरा मान लेती तो आज मैं ज़लील व ख़ार ना होती। तो वो कहती है, ये मैंने मौलाना मुफ्ती ज़रवली नव्वर अल्लाहु मरकदहु रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्हीं की ज़ुबानी सुना था। फरमाते हैं कि कहती है कि मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशवरा मान लेती, मैं आज ज़लील व ख़ार हूँ। वो तो कुछ था, ये सवा शेर है, वो शेर था, ये सवा शेर है। वो तो सुबह या कभी डांट टपट करता, और ये जो है लईन शख्स ऐसा मुझे मिला है, सुबह नाश्ता मार का देकर मार पिटाई करके दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा जाता है, सारा दिन बाहर काम काज पे, शाम को आता है, निकालता है, सौदा सरफ लेके आता है, पकवाता है, पकाकर फिर कोई बात हुई तो उस पे फिर मुझे डांट डपट पिला देता है। ये तो सुबह शाम ऐसा करता है, काश मैं ऐसा ना करती। तो इसी से एग्ज़ाम्पल है कि औरत के लिए पहला मर्द ही बेहतर है, और मर्द के लिए भी पहली औरत बेहतर है। मैंने हाँ ऐसे वाक़े देखे हैं कि मर्द अगर पहली बीवी की कदर नहीं करता, उसको तलाक देकर रवाना कर देता है तो उसके हक़ देता है। हमारे गांव का इलाका है, वहाँ पे एक औरत थी, बहुत ही निहायत शरीफ इंसान थी। तो उसको बिला वजह डांटता डपटता मारता पीटता। जब वो वफ़ात पा गई तो दूसरी बीवी उसको मिली, ओए होए, उसकी जो बीवी थी उसके दुपट्टे को आज तक किसी ने नहीं देखा था, पहली वाली। जो दूसरी बीवी है उसने जो है वो क्या करती, वो नशे की गोलियां देकर उसको सुला देती और अपने आशनाओं और दोस्तों से जाकर मिलती। पता है कब्रिस्तान जाकर क्या कहता? तो ऐसे लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है। तो वो कहता, मेरी बीवी, पहली बीवी की कब्र पे जाता, मेरी बीवी तो बाहर निकल, तेरी जगह मैं कब्र में जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ ज़लील हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसा करता। तो ऐसे औरत है, जब औरत शरीफ मर्द की कदर नहीं करेगी तो फिर ऐसे ही है, दूसरी जगह जाएगी, वहाँ ताने भी खाएगी, और दूसरा जो है वो भी दूध का दूल्हा नहीं होगा। वो भी यही सोचता है कि अच्छी होती तो ये तलाक उससे लेती या वो तलाक दे देता। तो कोई फरिश्ता नहीं होता, मैनेजमेंट करना पड़ता है। रिश्ते जो हैं मोहब्बत से चलते हैं, प्यार से चलते हैं। एक तोता है, जानवर का बच्चा है, उसको बोलना सिखाते हैं, वो काफ़ी टाइम लेता है। तो इंसान का बच्चा तो इंसान का बच्चा है, इसको मोहब्बत दो। आप थोड़ी सी मोहब्बत देकर देखो तो क्या वो आपको मोहब्बत नहीं देगी? हम जूते से और डंडे से जो है खामद को अपना बनाना चाहती हैं, और मर्द जो हैं जूते और डंडे से औरत को अपना बनाना चाहते हैं, मोहब्बत से नहीं। वो क्या देखते हैं कि वो जो है फलां मर्द जो है दबा हुआ है, मैं अगर इसको टाइट रखूँगा तो मैं भी इसको नीचे दबा के रखूँगा। ऐसी बात नहीं है, ये आप पर है। आप अगर जैसा रवैया रखेंगे वैसा ही होगा। तो इसीलिए अल्लाह पाक हमें अपने घरों को जन्नत बनाने की तौफीक अता फरमाए। अगर इंसान घर से सुकून पाता है तो बाहर भी उसका कारोबार में दिल लगता है, रिलैक्स होकर घूमता है। जो घर से
घर से टेंशन है वो कारोबार अच्छी तरह नहीं कर सकता। 1000 की बकाया 1000 की बजाय 2000 दे देता है और फिर उसका जो है दिमाग एक जगह नहीं रहता। गाड़ी पे चल रहा है, दिमाग उधर है और ढांचा जो है वो गाड़ी में बैठा है, तो एक्सीडेंट होगा और क्या होगा। तो इसीलिए कामयाब औरत बनिए। कामयाब औरत जो है, मर्द कामयाब हो, औरत की कामयाबी का जो है वो राज होता है। ठीक है, मर्द जितना कामयाब हो जाए लेकिन घर में उसको सुकून नहीं, वो कौड़ी ठिक्के का नहीं। हाँ, ये तजर्बे की बात है, हज़ारों देखे हैं हमने। तो इसीलिए घरों में सुकून पैदा करें। अक्सर जाने मैंने ऐसे देखी हैं कि घर से झगड़ा लगा, नाक पे दम कर देती हैं, तो फिर बाहर जाता है, बाइक पे जाता है, सोच उसकी दिमाग जो है वो घर की तरफ होता है, ढांचा जो है वो बैठा हुआ है बाइक पे, गाड़ी पे। तो फिर आगे और भी तो ऐसे टेंशन के मारे फिरते हैं, तो वे फिर आकर ठोक देते हैं या ये जाकर ठोक देता है। तो इसीलिए औरत को मर्द की कदर करनी चाहिए, क्योंकि घर बैठे धूप में सर्दी में कमा कर लाता है, परिंदों की तरह तुझे आकर घर में इज़्ज़त से खिलाता है, उसकी कदर कर। और मर्द को भी चाहिए कि सारा दिन थका हारा आता है इंसान, तेरी वाइफ धोबन भी है और टेलर भी है और मोची भी है और कुक भी है, हज़ारों काम तेरे करती है, तो भी कदर कर। दोनों को कदर करनी चाहिए। लोग कहते हैं मुझे खुशामद नहीं आती। मैं खुशामद नहीं करता, कड़क बात करता हूँ, मुंह पे तारीफ़ नहीं करता। अबे किस्मत के मारे, तुझे किसने कहा है खुशामद कर? खुशामदी के मुंह पे तो लानत है। खुशामद नहीं कर, दिल से तारीफ़ कर, दिल से कर। दिल से तारीफ़ करने का ख़ुद का मन नहीं करता, फिर लेबल लगाता है मैं खुशामद नहीं करता या मैं खुशामद नहीं करती, मुंह पे तारीफ़ नहीं करती। दिल हमारा नहीं चाहता, हम मोहब्बत नहीं रखते, तो फिर लेबल लगा देते हैं कि हम खुशामदी नहीं हैं। तो इसीलिए अपने घरों को जन्नत बनाएं। अल्लाह पाक नौजवानों को समझ अता फरमाए। और फिर जब आप किसी की बेटी को रुलाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक अल्लाह पाक तुम्हें मौत नहीं देगा या मुझे मौत नहीं देगा, जब तक कि मेरी बेटी के साथ वही सलूक ना हो। तो इसीलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। ज़ुबान पे ये अशआर बातें बहुत हमें आती हैं, लेकिन हमारा इस पर प्रैक्टिकली तौर पे अमल नहीं है। तो इसीलिए किसी की बेटी को मत सता, वरना तेरी बेटी सताई जाएगी, फिर बात का पछतावा काम नहीं आएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।